नमस्ते, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एनालिटिका आयुर्वेदा। आपका स्वागत है। दीपावली आपने अच्छी मनाई होगी और इस दीपावली पर तो हमने एक अपने मनोभावों को एक दीपावली के ग्रीटिंग कार्ड के रूप में आयुर्वेद जगत के समक्ष रखा। आपने संभवतः देखा होगा, जिसमें कि आयुर्वेदिक मेडिसिन्स का प्रोजेक्शन रेट था और पिछले एक वर्ष में आयुर्वेद के सेलिब्रेशंस पर बात की गई थी कि हमने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं और अगले में हमें क्या करना है। 5P to 5A एक कोटेशन था जो हमने ट्राई किया कि आपसे उसको आपके सामने रखा जाए। तो आइए, आज मंडे है और हमें बात करनी है रूल रेगुलेशंस की, और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूसली सिंस लास्ट 3-4 मंथ अबाउट द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट दैट वी हैव completed well. Now we are going through the drug rules 1945 and we have completed from rule 151 to rule 160. Now today we are starting rule 161, that is the under the part 17th. So before reading the subject, the same rule or the same suggestion, open your book, because without book it is impossible to connect, to understand, to perceive, to analyze, to interpret the theme and the spirit of the particular rule quoted there. Because this is the only capability of the legal language. When you go one by one, keeping in mind the comma and the full stop, then only one can understand what is the real meaning of this rule and how it can be utilized to promote someone or to demote someone. Yeah, it is possible only through the same language only. That is the situation and the interpretation and the way of the convincing by the same words, and that is the legal privilege of the legal language. So I always emphasize here, open the book. So now this is the part 17th and the heading is labeling, packing and limit of alcohol in Ayurveda, including Siddha or Unani drugs. Labeling, packing and limit of alcohol. ये तीनों तीन चीज़ें हैं. These are the three things, differently, entirely different. And try to understand what are these. See, somehow, sometimes some things are made for something, right? That. So here everything is right. The rules of the labeling, the rules of the packing, and the limit of alcohol is also added here, and in somewhere else also. Something about the same is quoted about the specifically asavanarist. That may be at one place, but that I shall cover when I shall reach there. Now, just 161. Every rule is very important. Every rule is very important, but some rules are more important. As for the purpose of the quality control and standardization and the drug testing laboratory, rule 160 is of the utmost importance. And in the same way here, the rule 161 is also equally important. Equally important.
because the labeling, packing, limit of alcohol, 161 is B is dealing with the shelf-life period of the Ayurvedic medicines. This is really very interesting, very significant rule which everyone should understand. So first go word by word, then I shall try to cover it in a simple language. So rule 161, see, it was inserted into this rule into the 1992. You remember 1964, 1982, and then onward, chapter 4th A, then the Ayurveda people, and the many more modifications. But the labeling was thought out that there should be a rule for this, that is the 1992 time of the establishment of the Department of ISMNH in the government of the P.V. Narasimha Rao ji, Honorable Prime Minister P.V. Narasimha Rao ji. So, department was established on the influence of Vaidya Brihaspati Dev Tribhuwana ji, whose statue was unveiled on this Ayurveda day, on the foundation day, that is the 18th October of the All India Institute of Ayurveda in 2023. In 93, 3, 13, 23, after 30 years, this was the conceptualization of the All India Institute of Ayurveda is in the mind of Vaidya Brihaspati Dev Tribhuwana ji, Padma Vibhushan Vaidya Brihaspati Dev Tribhuwana ji. So here also something I am trying to correlate, that when 1993 was the day time of the establishment of the Department of ISMNH under the Ministry of Health and Family Welfare, for the promotion and the propagation of the Ayurveda as a whole and the Indian system of medicines, at that time only when this labeling and the packing is also considered, there should be rule. There must be their experience of some leading Vaidya of that time or the leading authority of that time who thought out that yes, it is important to frame the rules about the labeling of the labeling, packing and other percentage of alcohol and the shelf-life period, etc. Shelf-life period is a very later phase in the 2005, 9, 2009, 2016. No, not in the 1992. It was not at all. It came into the existence shelf-life period in the 1st April 2010. That is the period of Madam Selja as a secretary of the Department of Ayush. So these things are really relevant. So now to the labeling. Let us see what the book is talking about this. Rule 161, labeling, packing and the limit of alcohol, and here is the clause 1. There shall be conspicuously displayed on the label of the container or package of an Ayurvedic, including Siddha or Unani drug, the true list of all the ingredients with the botanical names of plant-based ingredient along with the plant parts and form of the ingredients in which these are, bracket closed, used in the manufacture of the preparation together with the quantity of each of the ingredients incorporated therein and a reference to the method of preparation thereof as detailed in the standard text and adhikaran as are prescribed into the authoritative books specified in the first schedule of the Act, then bracket,
And in respect of the patent and the proprietary Ayurveda Siddha Unani drugs, the true list of the all ingredients with the botanical names of the plant-based ingredients along with the plant parts and the form of the ingredient in which these are used into the formulation with their quantity. See, this rule is really something telling you some story. Yes, I'm right. What is the message here? Everyone is knowing that the broadly we are having two kinds of the Ayurveda medicines. One is the section 3A, that is the classical, and another one is the section 3H, that is the patent and the proprietary. So for both, here the rules are very, very clearly specified. The leveling is required. What are the main things, that all we will cover. But here in the clause 1 of the rule 161, section 1, you can say that the emphasis is that every formulation which has been manufactured by a company must show conspicuously मतलब ये हुआ कि अच्छे से पढ़ा जा सके, इतने बड़े बड़े फॉन्ट में लिखा जाए, दिखे conspicuously. क्या दिखे? लिस्ट ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट्स, सारे इंग्रेडिएंट्स. और उसमें क्या, ये अमेंडमेंट लाया गया 2013 में कि क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि खाली आपने नाम लिख लिया लोकल भाषा का और आपकी दवा कहीं और गई, आपने नाम दे दिया उसमें तेलुगु का, वो दवा गई मलयाली क्षेत्रों में या डोंगरी क्षेत्रों में या कहीं भी गई, तो वहाँ उस तेलुगु नाम से तो कोई जानेगा नहीं. तो क्या चाहिए उस प्लांट के बारे में? बॉटेनिकल नेम. तो 2013 में ये अमेंडमेंट लाया गया कि जो भी इंग्रेडिएंट है उसका आप बॉटेनिकल नेम लिखिए. तो यूनिवर्सलाइजेशन हो गया. यूनिवर्सलाइजेशन, नॉट ओनली द इंडियनाइजेशन और द नेशनलाइजेशन. From regionalism to the national, not. It is the, if you are giving the botanical name of that particular plant, it's the universalization. Not only this, the botanical names, but you have to also note which part of the plant, root, stem, leaf, bud, which part, bark, that is the. And the next is here that quantity of each ingredients incorporated therein, in that formulation, which is the quantity of the particular ingredient you have to show on the label. It's really more important when you are talking about the some Sword Yoga or anything, Hirak Yoga, or like this. When the proportion is really very important, even in the plants also, variation of the 10 times, 20 times is there on the variety of the plant. Same species, same plant, but of the different species. See the Bansalochan that used in the Chanpras, the cost of the real Bansalochan and the cost of the Bansalochan used generalized way is different, multiple time different. So the quantity is important. So what is the point here? That, and that should be in the accordance of, आगे ये बोलते हैं, that should be in the accordance of
as details in the standard text and the adhikaran as prescribed in the authoritative books specified in the first schedule of the act। ये जितना भी क्लासिकल मेडिसिन आप बना रहे हैं, शास्त्रीय औषधियाँ, उनका संदर्भ भी आपको देना है, लिखना है उस पैकेज पर कि भेषज रत्नावली से है, कि चरक संहिता से है, कि ये सिद्ध भेषज मणिमाला से है, कि ये रसतरंगिणी से है, लाइक कि सारंगधर संहिता से है, कि भाव प्रकाश से है, ये आपको देना होगा। ठीक है, तो बात यहाँ तक आई क्लासिकल मेडिसिन के लिए। जो मस्ट है, बॉटेनिकल नेम्स, पार्ट ऑफ द प्लांट, क्वांटिटी ऑफ द प्लांट and the reference. Then in the same 2013 it is said about in respect of the patent and the proprietary Ayurveda Siddhamani drugs, the true list of the all ingredients with the botanical names of the plant based ingredient, plant based, if it is the Rasaushadhi and having some ras dravya, then botanical names कहाँ से लाएंगे आप, या जानतो प्रोडक्ट्स जितने भी हैं बॉटनिकल नेम्स कहाँ से लाएंगे आप। तो वहाँ जूलॉजिकल नेम, और अगर रस द्रव्य है तो मिनरल के नेम जो इंग्लिश भाषा में स्वीकार्य हैं वो दिए जाते हैं। फाइन, कुछ और याद आ गया, लेकिन यहाँ उसको बोलना ठीक नहीं है, लेकिन अभी बोलता हूँ क्योंकि ये तो बोलना भी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि वो ये पूछते हुए ड्रग लाइसेंसिंग ऑफिस में कि साहब ये लौ भस्म है, इसमें तो इसका बॉटनिकल नेम क्या होगा, या रजत भस्म है तो इसका बॉटनिकल नेम क्या होगा। अब उस डीलिंग असिस्टेंट को इतना ज्ञान नहीं है कि बॉटनिकल नेम खाली वनस्पतियों का होता है, और वो बॉटनिकल नेम प्रवाल में और रजत के योग पर नहीं लागू होगा, लेकिन वो फाइल पर ये अपने पूछते थे कि बॉटनिकल नेम क्या होगा। ऐसा है, और मुझे समझाना पड़ा था कि भाई ये बॉटनिकल नेम हर जगह नहीं होता है। तो ये बात क्लियर हुई कि अगर आपका पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन है तो आप रेफरेंस उसका जो फाइनल है वहाँ उस किताब का तो नहीं देंगे, लेकिन आपको 3 चीज़ें देनी है। जो आपके बॉटेनिकल नेम्स हैं, अगर वो प्लांट्स क्या है, प्लांट पार्ट आपने कौन सा यूज़ किया, और उसका फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट क्या है, और क्वांटिटी क्या है, ये आपको बताना होगा। तो देखिए, ऐसा हुआ कि अभी विश्व के एक कोने पर बहुत तेज़ युद्ध हो रहा है। मैं रूस यूक्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ, इजराइल और फ़िलिस्तीन की बात कर रहा हूँ। तो उसमें भारत में पश्चिम बंगाल में कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, और उन्होंने बहुत चैलेंज करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री को कहा, भारत देश के नागरिक थे, भारतीय नागरिक थे, कि अगर थोड़ी भी है तो भारत के प्रधानमंत्री इजराइल जाने का वीज़ा हम लोगों को दे दें। ध्यान दीजिएगा, इजराइल जाने का वीज़ा हम लोगों को दे दें तो मान जाएं कि भारतीय प्रधानमंत्री में दम है और हम इजराइल को मिटा के आ जाएंगे। वो कौन लोग हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो प्रश्न ये उठा तुरंत, जब से मैंने उस थोड़ा सा जानकारी रहती है, तो जब मैंने सुना उनको, मौलाना को बहुत तकरीर दे रहे थे और कहे कि भारतीय प्रधानमंत्री में अगर थोड़ा भी शक्ति है, नैतिकता है, दम है, तो हमको इजराइल जाने का वीज़ा दे दें और फिर दिखाएं हम इजराइल को नस्तनाबूद करके आ जाएंगे। अभी इजराइल और फ़िलिस्तीन के मसले पर, उस झगड़े में हम नहीं फंसना चाहते। हमारी राय है उस पर, और जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था बीएससी में, तो 1983, 84, 85 के दौरान, 83 to 86 के दौरान
तो हमारे सीनियर्स जो हैं पीसी बनर्जी हॉस्टल में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अपना चाय की दुकान पर बैठे बैठे पश्चिमी एशिया की सारी समस्याओं का समाधान कर दिया करते थे। तो मैं उस समय से जानता हूँ कि इसराइल और फ़लस्तीन और यासिर अराफात और गोल्डा ये सब चीज़ें वो अलग है, उस मुद्दे पर मैं नहीं टिप्पणी कर रहा हूँ। मैं यहाँ टिप्पणी करना चाहता हूँ इस ज्ञान पर जो मौलाना दे रहे थे कि भारतीय प्रधानमंत्री इसराइल का वीज़ा दे दें। अब उनको ये तक नहीं पता कि वीज़ा भारत नहीं देता है, भारत में आने वालों को भारत वीज़ा देता है। आपको इसराइल जाना है नैतिक समर्थन करने के लिए तो आपको वीज़ा इसराइल सरकार देगी ना। भारतीय पासपोर्ट तो आपके पास है ही है, आप वीज़ा ले लीजिए इसराइल सरकार से, हो जाइए। तो ये जो ज्ञान बढ़ रहा है ना, ये बड़ा दिक्कत का है कि बिना जाने कोई कुछ भी स्टेटमेंट देता रहता है। अभी और सारे स्टेटमेंट मुझे याद आ गए, लेकिन अभी विषयांतर हो जाएगा। वो सारे स्टेटमेंट्स मतलब कि हिंदू धर्म मतलब कि सनातन धर्म के अनुयायियों के द्वारा, चाहे बौद्ध धर्म के अनुयायियों के द्वारा दिए गए हैं इस तरीके के, जो बहुत सारा ज्ञान बांट देते हैं लोग, कुछ भी बोल देते हैं और वास्तविकता में नहीं जाते। चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, कोई भी इशू हो। तो ऐसा ही ज्ञान मुझे भी मिला था जब मुझसे पूछा गया, जब मैं कहीं मेंबर था स्टेट ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी का, तो बड़ा भोलेपन से आकर के मुझे वहाँ के बाबू ने पूछा कि सर ये लोहा रजत का इसमें सब है, इसका बॉटेनिकल नेम सर नहीं लिखा हुआ है, इसमें कैसे आएगा? प्रवाल में बॉटेनिकल नेम क्या आएगा, लोहा रजत का बॉटेनिकल नेम क्या आएगा? तो मैंने फिर उस बाबू को समझाया कि भाई आपने क्या, जो ड्रग इंस्पेक्टर साहब थे उनसे पूछा इस बारे में, लेकिन मैंने उसके उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की कि अब ड्रग इंस्पेक्टर साहब के लिए वो उत्तर दे क्या दे। मैंने बताया कि भाई देखो, इनके बॉटेनिकल नेम नहीं होते हैं। तो ये बस बात तो बातें याद आती हैं। तो अभी कोई भारत सरकार से इजराइल जाने का वीज़ा मांग रहा है, तो वैसे ही बॉटेनिकल नेम की भी बात आई थी। तो इस तरह समझ की कमी होती है, तो समझना चाहिए कि हाँ भाई, मैंने तो उस बाबू को समझाया तो समझ गया, अच्छा साहब ऐसा बात है, ठीक है। बाकी लोगों को भी समझना चाहिए। तो उदाहरण कुछ कुछ ऐसे आ जाते हैं याद, तो आदमी बोलता है, बोलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये लिखते हैं कि प्रोवाइडेड दैट इट नीडेड स्टैंडर्डाइज्ड एब्रीविएशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर पार्ट्स एंड फॉर्म ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द ऑफिशियल आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी फार्माकोपिया एंड फार्मूलेशंस में बी यूज्ड ऑन द लेबल। हाँ, जो ऑफिशियली एब्रीविएशन के पार्ट हैं, जैसे पार्ट का ईपीटी, स्टेम का, रूट का, सबका आरटी एसटी बना हुआ है, तो एब्रीविएशंस हैं। इवन किताबों के भी एब्रीविएशंस हैं। तो उस एब्रीविएशन को यहाँ देने की बात ये नियम करता है कि जो आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया और फार्मूलरी में जो एब्रीविएशंस दिए गए हैं स्टैंडर्ड, वो आप लेबलिंग पर यूज कर सकते हो। और ये स्टैंडर्ड टीकेडीएल ने भी लिए हैं, वहाँ से भी आप एब्रीविएशंस यूज कर सकते हैं। किसके लिए? पार्ट ऑफ द प्लांट के लिए, कि कौन सा पार्ट इसमें यूज हुआ है, फ्रूट्स हुआ है कि रूट हुआ है, ये सारे चीज़ों के लिए, ठीक है। और वहीं के, ये नहीं कि आप कुछ भी अपने मन से बना लें। फिर एक लिखते हैं कि प्रोवाइडेड दैट इफ द लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स कंटेन्ड इन द मेडिसिन इज लार्ज, हाँ मैं वही सोच रहा था, एंड कैन नॉट बी accommodated on the label, the same may be printed separately and enclosed with the packing and reference be made to the effect on the label। बहुत सारे योग हैं, पैकिंग इतनी सी, इंग्रेडिएंट 22, 54, 18, चंद्रप्रास के ही गिन लीजिए, नवास लॉ की पैकिंग और उसके इंग्रेडिएंट गिन लीजिए 11। तो ये सारी स्थिति के लिए उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अगर आप उसके लेवल पर नहीं दे सकते हैं शास्त्रीय औषधियों के, तो आप एक अलग से लीफलेट बनाइए और उस पैकिंग में
डाल दीजिए। अब इस पर बहुत काम हुआ था और कि इस लीफलेट की डिज़ाइन क्या हो, उस पर क्या क्या लिखा जाए, और इस पर जहाँ तक मुझे मेरी याददाश्त मेरा साथ दे रही है तो डॉक्टर DBA नारायणन ने इस पर बहुत काम करने की कोशिश की थी कि आयुर्वेदिक दवाओं की इंफॉर्मेशन के लिए कैसी लीफलेट हो जो पैकिंग में डाली जाए। आपने देखा होगा ना, मॉडर्न मेडिसिन में एक इंजेक्शन की या कुछ भी एक आया, इतना बड़ा पैकिंग है और उसमें फोल्ड कर 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 करके पूरी इंफॉर्मेशंस हैं, वो आप खोलते हैं तो इतनी लंबी निकलती हैं। पढ़िए उनको, और पढ़ते हैं लोग, इंटरेस्टेड डॉक्टर्स पढ़ते हैं, उसमें सारी उनके साइड इफ़ेक्ट, इंडिकेशन, कंट्राइंडिकेशन, मॉलिक्यूल एक्सट्रैक्ट, सारा डिटेल दिया हुआ है। तो ऐसा ही वो एक चाहते थे यहाँ पर, और कि एक कंप्लीट फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट लिस्ट चाहते थे कि यहाँ पर लगे और ये इसके साथ रहे। कुछ प्रोडक्शंस में हमने देखा है, जैसे कि सारीवाद्य बटी है, बहुत सारे उसमें अच्छे इंग्रेडिएंट हैं, इतनी बड़ी पैकिंग आती है तो उसकी एक लीफलेट अलग से लोग डालते हैं। बसंत कुसुमाकर रस है, उसमें लीफलेट डाल देते हैं। तो इसको फॉलो हो रहा है, इट इज़ बीइंग अडेप्टेड, इट इज़ बीइंग फॉलोड। सो तो ये लीफलेट की व्यवस्था है अगर इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा हों। आज एक और पूरा करते हैं, 5 मिनट और, फिर इसको बीच में आज एडजर्न करेंगे। तो ये कंटेनर के बारे में है। क्लास 2, द कंटेनर ऑफ ए मेडिसिन फॉर इंटरनल यूज मेड ऑफ रेडी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट सेल, comma, if it is made up from a substance specified in the schedule E1, be labeled conspicuously with the word caution to be taken under medical supervision both in English and the Hindi languages। ये तो कोई और बात आ गई, जो बात हमने सोची थी वही नहीं है, लेकिन जो बात सोची थी वो भी बोलेंगे और जो है यहाँ वो भी बोलेंगे। तो पहले जो यहाँ है वो बोलते हैं। द कंटेनर ऑफ ए मेडिसिन फॉर इंटरनल यूज मेड ऑफ रेडी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट सेल इफ इट इज मेड ऑफ फ्रॉम ए सब्सटेंस स्पेसिफाइड in the schedule E1 be labeled conspicuously with the words caution to be taken under medical supervision both in English and the Hindi language। अगर schedule E1 में specified जो drugs हैं जिसमें कि संख्या है, जिसमें कि उपविष्ट भी हैं, जिसमें कि कुछ रसौषधियाँ भी हैं, मतलब हिंगुल तो हटा दिया गया, पहले हिंगुल भी था, लेकिन ये अगर आपके घटक हैं, शेड्यूल E1 को देख लीजिए। तो शेड्यूल E1 में जो भी चीज़ें आपके आती हैं, अभी हम रूल्स को पूरा करने के बाद शेड्यूल्स पर भी पूरा एक सीरीज चलाएंगे, तो वहाँ पर आपको एक मोटा मोटा लिखना होगा कि इसमें शेड्यूल E1 घटक है, ओपियम है, आर्सेनिक है, एक घटक के रूप में है, और वो आपको वहाँ पर दिखाना होगा कि इसको आप सावधानी से प्रयोग करें। दोनों भाषाओं में लिखना है, इंग्लिश एंड हिंदी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले मंडे को मिलते हैं रूल 161 के साथ, और रूल 161 का क्लास 3 कवर करेंगे। इसकी एक देखते हैं कि इसमें कंटेनर के टाइप के बारे में कहीं कुछ है या नहीं है, आगे बढ़ेंगे। तो आज हमने ये देखा कि अगर घटक बहुत ज़्यादा है तो लीफलेट डालिए, शेड्यूल E1 की है तो उसको भी बताइए, ज़ोरों से बताइए, बड़ा बड़ा लिखिए, छापिए, और प्लांट्स का नाम, बॉटेनिकल पार्ट यूज्ड एंड द क्वांटिटी ये आपको बतानी होगी। साथ ही आपको यह भी बताना होगा कि उसका रेफरेंस क्या है, अगर वो शास्त्रीय औषधि है, और यदि वो पेटेंट प्रोप्राइटरी है तो आप इससे एग्जेम्प्टेड हैं।
तो इतने को रिवाइज करिए, फिर अगले मंडे को मिलते हैं। रूल 161 कंटिन्यू करेंगे और क्लास 3 के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, अभिवादन, धन्यवाद।